یار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں عاشقوں، جو ہی ربیع النور کا مہینہ آتا ہے، آل محبت کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع پھر سے اجالا ہو جاتی ہے اور پھر سے چمکنے لگتی ہے، اور اہل بدعت اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو وہی اعتراض لے کر میں آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ سب سے پہلے ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو تم لوگ میلاد مناتے ہو، کیا قرآن میں اس کا ثبوت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے حضور کا میلاد منایا ہے؟ تو بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور توفیق سے بندہ اس قابل ہوا اور اللہ نے یہ فہم عطا فرمائی۔ قرآن کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد قرآن کے اندر اللہ مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے اس کا خوب چرچا کیا کرو، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ لیکن اب پھر سوال ہوتا ہے کہ جو چرچا ہوتا ہے یہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا ہم جو نعرہ لگا دیں، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، یہ ہے چرچا۔ اس کو ہم چرچے کا لفظ اس کو ہم چرچا کہتے ہیں، جو زبان سے کیا جائے اس کو چرچا کہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، بھائی چرچا زبان سے ہوتا ہے، عام میلاد کے مہینے میں نبی کی ولادت کی خوشی میں گھر کو کیوں سجاتے ہیں، بازاروں کو کیوں سجاتے ہیں؟ کیا یہ چرچا ہے؟ کیا اس کا قرآن نے تجھے حکم دیا ہے؟ تو ہم پھر قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو نبی علیہ السلام کو فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ملے تو فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ اب فضل اور رحمت جنوں کو ملے وہ تو خوشیاں منائیں۔ اب فَلْيَفْرَحُوا کا جو صیغہ ہے یہ امر کا ہے، فَحَدِّثْ کا جو صیغہ دوسری آیت میں آیا تھا وہ بھی امر کا ہے۔ تو یہ دونوں آیتوں کے اندر اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جب فضل مل جائے، نعمت مل جائے، رحمت مل جائے تو پھر چرچا بھی کیا کرو اور خوشیاں بھی منایا کرو۔ لیکن اب میری تحقیق میں یہ بات آئی ہے کہ جب فضل اور رحمت اکٹھی ہو جائیں، جب اللہ فضل بھی بندے کو عطا کرے اور رحمت بھی عطا کرے، اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ ایک میلاد کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس ہستی کے واسطے اور وسیلے سے اللہ نے کائنات کو سجایا، اس کے اندر رونقیں لگ گئی، اور اللہ نے اپنی حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں محمد کی ذات کو نہ بناتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ ساری کائنات جو سجی ہے، اس کے اندر رونقیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے توسل سے ہیں۔ لیکن اب یہ تھا قرآن کے اندر ثبوت، اور بھی کئی آیات کے اندر اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا انہوں نے میلاد منایا تھا؟ آج تم میلاد مناتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میلاد منایا تھا۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، صحیح مسلم، کتاب صحیح مسلم ہے، اس کے اندر پرسن جاتی، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف کے سین میں صحابہ کرام حلقے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس کی شکل میں بیٹھے تھے، ایک جلسے کی شکل میں بیٹھے تھے، اور کچھ بات چیت کر رہے تھے، کچھ ذکر فکر کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ ما اجلسکم،
नबी अलैहिस्सलाम ने आते ही सवाल फरमाया कि मा अजलसकुम, ऐ सहाबा क्यों बैठे हो, तुम्हारे बैठने की वजह क्या है, तुम्हारे जुलूस का मकसद क्या है। सहाबा ने अर्ज की, कालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी मन्ना बिही अलैना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस वजह से बैठे हैं, नज़कुरुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी, और हम अल्लाह की हमद कर रहे हैं। किस वजह से? कि अल्लाह ने हमें इस्लाम के रस्ते की हदायत अता फरमाई, अल्लाह ने हमें इस्लाम का रास्ता दिया। व मन्ना बिही अलैना, और हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, व मन्ना बिही अलैना, कि अल्लाह ने हमें आप जैसा रसूल अता फरमाया है। ये नबी अलैहिस्सलाम की आमद के भी तज़किरे हो रहे हैं, अल्लाह की वहदनियत के भी तज़किरे हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं सहाबा इकराम। किस वजह से? वमन्ना बिही अलैना, या रसूलल्लाह आप जो हम में तशरीफ लाए हैं। कालल्लाहु मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, फरमाया सहाबा क्या तुम कसम खाते हो कि तुम्हारा बैठने का मकसद यही था? क्या तुम्हारा जुलूस का जो मकसद था वो यही था कि तुम अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह की तारीफ करो, इस बात पर कि अल्लाह ने तुझे इस्लाम जैसा दीन अता किया है और मोहम्मद जैसा नबी अता किया है। तो सहाबा इकराम ने फरमाया, क़ाल अमा इन्नी लम अस्तखलिफुकुम, या रसूलल्लाह हम हलफ उठाते हैं कि हम इसी वजह से बैठे हैं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबा तुम हैरान मत हो कि मैंने तुझसे कसम ली है। आज हम मजलिस में कई महफिल पर, कई जुमे पर लोगों से ये सवाल कर लें कि आप किस वजह से आए। जुमे में ये सवाल किया जाए कि बताओ तुम किस वजह से आए। हालांकि हर बंदे को पता है कि जब बंदा जुमे के लिए मस्जिद में जाता है तो जुमे के लिए ही जाता है, जुमे की नमाज के लिए ही जाता है। लेकिन उधर मिंबर पर बैठकर अगर खतीब कहे कि मा अजलसकुम, तुम्हारे बैठने का मकसद क्या है, और कहेंगे हम तो जुमे के लिए बैठे हैं, हमने नमाज अदा करनी है, और वो फिर कह दे कि कसम दो इस पर, वो हैरान हो जाएंगे, यार कसम किस बात की। तो इसी तरह सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैरान हुए कि इस बात पर कसम क्यों ली गई। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अतानी जिब्राइलु फअखबरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल युबाही बिकुमुल मलाइका, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, साहबा मैं कसम इस वजह से नहीं उठा रहा, बल्कि कसम इस वजह से उठा रहा हूँ कि जब मैं हुजरे में तशरीफ फरमा था, जब मैं हुजरे में बैठा था तो मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे। उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबाही, अल्लाह ताला फख्र कर रहा है बिकुमुल मलाइका। उन्होंने खबर दी है जिब्रील ने मुझे, अल्लाह मजदुल करीम इस बात पर फख्र कर रहा है जो तुम हल्का लगा कर बैठे हो। कि ये किस अमल पर फख्र कर रहा था, अल्लाह किस बात पर फख्र कर रहा था, किस वजह से वो हल्के में बैठे थे? इस वजह से बैठे कि हुजूर की आमद का तज़किरा कर रहे थे, महफिल मिलाद मना रहे थे, और ये ऐसा अमल है जिस पर रब होकर भी फख्र महसूस कर रहा है। ये सहाबा इकराम का तर्ज अमल था। और भी कई हदीस में ये सबूत मिलता है। और अल-मुख्तसर ये है, अब लोग पूछते हैं कि तीसरा सवाल ये किया जाता है कि आले मक्का से दीन हम तक पहुंचा है, क्या मक्का वाले भी जुलूस मनाते हैं? तो बिहम्दिल्लाह ताला इमाम मोहम्मद बिन जारुल्लाह ज़हीरा अल-करशी, उनकी किताब अल-जामिउल लतीफ़ के अंदर जो मक्का और काबा की तारीख पर लिखी गई, उसके अंदर मौजूद है कि जो आले मक्का थे, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले जो आले मक्का थे वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर, आपकी तशरीफ आवरी पर, आपकी विलादत पर पुरजोर जुलूस मनाते थे। और वो जुलूस कहाँ से शुरू होता था और इसका इख्तिताम कहाँ पर होता था? उस जुलूस का जो आगाज़ है वो काबातुल्लाह से होता था, और वो चलता चलता मक्के की गलियों से गुजरता वो जुलूस का इख्तिताम बीबी आमना के घर में होता था। ये थे मक्के की तारीख। लेकिन जो अब मौजूदा हुकूमत है, ये 75, 76 या 70 साल हो गए हैं ये जुलूस नहीं मनाते। लेकिन अब ये देखा जाए कि ये दीन उनकी तरफ से आया था। मैं बात अपनी तहकीक से करता हूँ कि ये दीन
75 साल से नहीं आया, बल्कि 1400 साल पहले आ चुका है, और 1400 से लेकर आज तक मक्का की तारीख में भी जुलूस मनाते आए हैं। ये सिर्फ 75-70 साल हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को, जिन्होंने जुलूस को ख़त्म कर दिया है। लेकिन आज भी आले मक्का अपने घरों में जुलूस, अपने घरों में महफिल मिलाद करते हैं और खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी आपके बेटे हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर साल मिलाद मनाते थे। और वो जो मशहूर रवायत है कि आपके पास एक साल पैसे नहीं थे, तो आपने कुछ चने लेकर, ये भूजे हुए चने लेकर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन पर मिलाद मनाया और तकसीम किए। तो रात ख्वाब में सरकार तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, तेरे ये चने भी हमारी बारगाह में कबूल हो चुके हैं। वो शाह मुहद्दिस देलवी क्या लिखते हैं? शाह वलीउल्लाह अपनी किताब फ़यूज़ुर रहमान में लिखते हैं कि मैं मक्का में मौजूद था और मिलाद की महफिल हो रही थी। बात वही आ गई कि मक्का में मिलाद हो रहा है। आप फरमाते मैं मक्का में मौजूद था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में महफिल हो रही थी। तो मैंने मुराकबा किया है, और मैं मुराकबे में क्या देखता हूँ कि 2 नूर देखे हैं। मैंने मुराकबे में 2 नूर देखे हैं। जब मैंने मुराकबा किया है और तफक्कुर किया है, तदब्बुर किया है और सोचो विचार की है कि ये दो नूर कहाँ से आ गए, तो मुझे पता चला है कि ये 2 नूर ये हैं। पहला नूर ये है कि महफिल मिलाद का एक नूर है, और दूसरा नूर कि मलाइका, फरिश्ते मलाइका इस महफिल में आए हुए हैं, उनका नूर है। तो लिहाजा ये 2 नूर जमा हैं। और हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, ये अशरफ थानवी का भी लीडर है, अशरफ थानवी का शेख है, और जितने भी देवबंदी उलमा हैं उनका अकाबिर और शेख है। ये इनसे सवाल किया गया, पूछा गया कि हाजी साहब क्या मिलाद मनाना चाहिए? आपने फरमाया हाँ, इसमें बरकत है, महफिल मिलाद के अंदर बरकत है। और आले मक्का का, आले हरमैन मिलाद शरीफ मनाते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जितने भी आइम्मा की सीरत पढ़ ली, उनकी कुतब पढ़ लें, यही बात साबित होती है। जहां में कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी में के सिलसिले में जश्न मिलाद ना किया जाए। सिर्फ ये मैं मिसाल इस वजह से देता हूँ, सिर्फ आले मक्का वाले हैं, आले अरब हैं, जो अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुलूस को उन्होंने तर्क कर दिया है। और बाकी पूरी कायनात के अंदर हर जगह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाया जाता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब में लिखते हैं कि पूरी कायनात में मिलाद मनाया जाता है। इमाम शम्सुद्दीन जज़री ने मिलाद को जायज़ और मुस्तहसन करार दिया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती वो शख्सियत है जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 17 मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए, और वो शख्सियत कह रहे हैं ये मिलाद जायज़ है, मुस्तहसन है। शाह अब्दुल रहीम देलवी लिखते हैं, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की लिखते हैं, अलामा इब्ने जौज़ी लिखते हैं, मौलाना फदलुर रहमान गंज मुरादाबादी लिखते हैं, हज़रत हकीम फदल मोहम्मद जालिंदरी लिखते हैं, शाह अबुल खैर देलवी लिखते हैं, और भी कई बुजुर्गान दीन ने लिखा है। और अलामा इब्ने हजर अस्कलानी ने मिलाद को जायज़ और मुस्तहसन करार दिया है। हज़रत तवक्कुल शाह बालवी ने जायज़ करार दिया है। इमाम मोहम्मद यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन सब बुजुर्गों ने मिलाद को मुस्तहसन और जायज़ करार दिया है। और मौजूद है सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, मिटते हैं मिट जाएंगे आदाब तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मिलाद को मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन ये जो सिलसिला है नबी के जिक्र का, फिक्र का, मिलाद का, ये हर साल ज़्यादा ज़ोर और शोर से मनाया जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब लिखा कि तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, कलम टूट गए और जिंदगियां ख़त्म हो गई, वमा अलैना इल्लल बलाग।